all know the keynote address will be by Dr. Narendra Joshi. I would like to introduce him, though Savan sir has introduced him briefly. I will like to tell you something more about Dr. Joshi. Before that, I will request Dr. Joshi to come on the stage and have your seat. I request Shri Mahesh Sindar sir to have a seat. So it's an absolute honor to introduce our esteemed chief guest, academician and a true visionary in the field of education and interdisciplinary research. With over 3 decades of extensive experience, he has represented excellence and innovation in every aspect of his illustrious career. Currently serving as the project director for renowned institutions like Vivekananda Prabodhini Mumbai, Bhishma School of Indic Studies in Pune, and an adjunct faculty at Aurobindo University in Surat. Associated with prestigious organizations such as Vivekananda Kendra Kanyakumari, Bharatiya Shikshan Mandal, and University of Patanjali. Dr. Joshi's journey began with a Bachelor of Engineering from the University of Mumbai, specializing in production engineering, material science, and tool and die design. His academic prowess continued with Masters in Manufacturing Engineering, securing the top rank in their year. He completed a PhD in Sri Aurobindo Studies, thesis on the study of philosophy and futurology of artificial intelligence in the light of Sri Aurobindo's integral philosophy. He is a published author also, and his achievements amassed by our chief guest is a proof of his dedication and excellence. His membership in professional bodies and affiliations with Sri Aurobindo Society reflects unwavering commitment to holistic education and societal welfare. So it is a great pleasure that we welcome Dr. Narendra Joshi, an individual whose dedication to education, research, and societal progress serves as an inspiration to all. So please join and extend a warm welcome to our distinguished guest. And I request Chairman of Yoga Vidya Niketan, Shri Sindar sir, to felicitate him. Now I request our guest to share your thoughts. A request to everyone, all of you are sitting at the back, please come ahead and have a seat. Audible? Namaskar. Am I audible? Should I start? Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. हरि ओम। ये प्रार्थना हमारे प्राचीन, सुनाई दे रहा है? ऑडिबल? प्राचीन ग्रंथों में, उपनिषदों में, तैत्तिरीय उपनिषद में हम जो शुरुआत में प्रार्थना करते हैं शांति में,
उसका हमने भी उच्चारण किया। और इफ यू लुक एट अवर Upanishads or entire ancient Indian literature, classical literature, they are the fountainhead of the wisdom which is still sought by modern science. So even though some of you may be knowing this Bhrigu and the part of the Upanishad, I will briefly mention that because the subject connects with it very well. And secondly, especially I want to connect it with the modern science because the today generation is the generation of science. तो जब हम जानते हैं कि ये उपनिषद की जो कथा है, वो कथा में जो विचार आ रहा है वहीं पर अभी नया विज्ञान भी जा रहा है, तब हमें एक विश्वास होता है कि जिसकी बात योग कर रहा है वो केवल भूतकाल की बात नहीं है, लेकिन ये भविष्यकाल की बात है। जैसे श्री अरविंदो का एक बहुत सुंदर वाक्य है, he said, we do not belong to the dawns of the yesteryears, we belong to the noons of tomorrow. हम कल के उषक काल के है ही नहीं, हम तो कल के मतलब टुमारो, कल के दोपहर की बात कर रहे हैं। तो पूरा विश्व आज में फंसा है, कुछ कल में फंसे हैं, भारत is talking about tomorrow. And as many historians have said that this century belongs to India if humanity has got any hope. Otherwise there is not going to be any future. The future is going to be decided by India and we are all going to be part of it. तो इसलिए मैंने उपनिषद का शुरुआत में वो शांति मंत्र, शांति जो ये कहा मैंने, सहना हो तो सहना हो, ये पूर्ण विचार ही वैसा है कि हम साथ में पढ़े, साथ में बढ़े, हम एक दूसरे को समझाए, समझे और इस प्रोसेस में हम आनंद लें। और इसमें माँ विद्विषा है, किसी को किसी के बारे में मत्सर या दुर्भावना होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सारा दुख, सारी पीड़ा, इसका मूल ही दुर्भावना में है, मत्सर में है। किसी के बारे में या तो डर लगता है या फिर उसके बारे में मत्सर होता है या क्रोध आता है, सारी षड्रिपु की वहां से शुरुआत होती है। लेकिन कब ये होता है, भय कब लगता है? जब मुझे लगता है कोई दूसरा है। The fear is because I think somebody else is there. When I think that there is nobody else, it's all me only, it's all mine only. So there is माँ विद्विषा, कुछ मत्सर की जरूरत नहीं है। इसलिए वो शुरुआत से ही इतना सुंदर श्लोक हमें बताया गया है। लेकिन मुझे इसका प्रत्यय, जैसा मैंने सुबह भी कहा, आई लाइक टू टेक इट फ्रॉम दी डे टू डे वर्क वेयर वी आर कनेक्टेड। अब इसलिए मैं वो कोट करना चाहता हूँ आपको शुरुआत में, और फिर हम बाद में आनंदवल्ली और भृगुवल्ली में आ ही जाएंगे। तो हमारे यहाँ से मैं आया हूँ, आज सुबह मैं बोरेली से आ गया, तो बोरेली टू वाशी आप सोच सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एकदम कॉमन जीवन का उदाहरण बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ एक, जिसको हम लोग भेल वाला कहते हैं ना, वैसा एक व्यक्ति कई साल से हमारे एरिया में रोज भेल बेचता था या कुछ बाकी उसके सारे चीजें बेचता था, चाट की चीजें, जो बॉम्बे में एक श्योर शॉर्ट वे ऑफ हैप्पीनेस इज टू टेक समथिंग फ्रॉम ए भेल वाला, इजंट इट? एम आई राइट? सो कई लोग लेते थे, लेकिन हमारी पर्टिकुलर सोसाइटी में उसको एक फ्री एंट्री दी थी। उसको क्यों फ्री एंट्री मिल गई वो बताता हूँ। ये व्यक्ति का नाम मुझे आज भी पता नहीं है, पिछले 3-4 साल से वो नहीं दिख रहा है, मतलब शायद वो है या नहीं है हमें पता नहीं, बट ही हैज लेफ्ट हिज मेमोरीज सो प्योर एंड सो हैप्पी विथ अस दैट इवन दो वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट हिम, वी स्टिल रिमेंबर हिम। व्हाट वाज हिज एजुकेशन? हार्डली एनीथिंग। ही केम फार अवे फ्रॉम समवेयर बिहार और समवेयर एंड ही वाज लिविंग मेकिंग हिज लाइवलीहुड बाय सेलिंग दी भेलपुरी। बट इफ यू आस्क दिस पर्सन एनी टाइम, भैया कैसे है, तो उसका उत्तर आता था आनंद में है। I have heard this answer from him at least 100 times because I wanted to see if he changes his answer. Any season, any day, any year, he has not changed. Or any person asking the question, from child to the, हमारे बेटे बेटियां भी उससे पूछती थी, बूढ़े भी पूछते थे, भैया कैसे है, एक उत्तर ही आएगा, आनंद में है। आनंद मीमांसा जो हमारे उपनिषदों ने बताई है, वो भारत के हर व्यक्ति में, शिक्षित अशिक्षित व्यक्ति में, उसके कण कण रग रग में गई है। आनंद में, सुख में है। ये सुख कहां से आता है, आनंद कहां से आता है, ये मुझे उसके साथ बात करके समझा। मैंने उनके पूछना शुरू किया, आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? अगर आपने बाह्य दृष्टि से देखा, इफ यू जस्ट सी हिज एक्सटर्नल लाइफ,
He had nothing to be really happy about. For years, he was staying away from his family. He was just running hand to mouth. Some voice problem. Are you able to hear me? And he was living in a very, you can say, below ordinary subsistence level in some corner of suburb of Mumbai. But then, any time anyone asking him this simple question, his answer was आनंदमय, सुखमय. He got that from where? ये प्रश्न मुझे हमेशा आता था. ये व्यक्ति ने ये कहां से सीखा? और फिर जब मैं स्वामी विवेकानंद पढ़ रहा था तो उनका एक बहुत सुंदर वाक्य है कि अगर आपको वेदांत सीखना है, अगर आपको उपनिषद और वेद सीखने हैं, तो भारत के कोने कोने में जो किसान है, मजदूर है, कारीगर है, जो रूढ़ार्थ से, लौकिक अर्थ से ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को जाके पूछो. They will, and this is from his Kolombo to Almora lectures. You can see it. He says these people are going to teach you better Vedanta than any university professor. India's commonest person is going to tell you what Vedanta is. It has gone in our blood. It has been there with our birth and before our birth also. In another quotation, Swamiji says, "Does this Vedanta, whether you know it or not, whether you understand it or not, whether you believe in it or not, is there in every cell of your body, in every part of your body, and you are born in Vedanta, you live in Vedanta, and you are going to die in Vedanta, and every Hindu is going to do that." ये स्वामी विवेकानंद का वाक्य है. So we have got it through our DNA, you know, you can say in modern language, you can say DNA. And then when we go to college, universities and learn something else, actually we forget. We keep on forgetting what is there actually with us. It's like we are born with Soham, and then we live all our life with Poham. Who we are, who we are. So one day, Immanuel Kant, one of the great thinkers of Western world, he was another way. He was just thinking of the Upanishads from his language and his perspective. He was walking in a garden, which was his daily round, and he had a habit of just rotating his stick, because when you think, you just keep doing something which is involuntary. So he was rotating stick and walking every day. But there was one aristocrat that time, some Umrao, and his stick just happened to slightly touch that person. But his ego was so strong, he immediately said, "Why you have hit me?" "I did not hit you, it just happened to touch you when I was rotating." So that person, with all his pomp and show and all, उसका सारा वो जो ये था, उसका रुतबा था, उसको अहंकार को ठेस पहुंची कि कोई आदमी ऐसे सामने से आता है एकदम सामान्य और मुझे काठी से मारता है. मारा नहीं था. तो उसने उसको पूछा, "Who do you think you are? Who you are?" ऐसे कांट को पूछा, इमैनुअल कांट, बहुत बड़े विचार बोलते. तो कांट ने जो उत्तर दिया, जो अगर आपने उपनिषदों का अभ्यास या आनंद ये सारा विद्या के बारे में पढ़ा होगा, भारत के बहुत बड़े विचारवंत केवी बेलसरे, उन्होंने ये प्रसंग लिखा है. गोंदवलेकर महाराज के वो शिष्य थे. तो वो प्रसंग में वो लिखते हैं, इमैनुअल कांट ने वो सवाल सुना, "Who do you think you are? Who you are?" तो उसने कांट ने जवाब दिया, "Sir, that is precisely what I am trying to find out. And if you can tell me who I am going to give you anything what I have. Of course, I don't have much, but whatever you want, I can give you." That is the question of the question. ये सबसे बड़ा प्रश्न ये है. ये प्रश्न समझ गया तो बाकी सब समझ गया. ऐसी भारत की विद्या. तो इंडिया, इंडियन कल्चर, इंडियन इथोस आर टॉकिंग फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट लाइन. और ये शायद हमें यूनिवर्सिटी, सॉरी टू से दिस, मैं भी यूनिवर्सिटी से ही मेरी करियर करके आया हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ बड़े ही विश्वास से कि शायद वहां नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ जरूर मिलेगा. सर आनंद है, सर सुख है. ये जब कोई सामान्य व्यक्ति आपको बताता है, फिर समझ में आता है, अरे ये है, ये यहाँ से हम आए हैं, इस धरा से हम आए, पुण्य प्रवाह हमारा. ऐसा ही उदाहरण बोलता हूँ. जब पहली बार नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जहां मैं काम कर चुका हूँ, मैंने जैसा कहा मैं फुल टाइम कार्यकर्ता था, प्रचारक था, आसाम अरुणाचल में, वन ऑफ द मोस्ट टर्बुलेंट एरिया, इफ यू नो, so many insurgent activities are there. Things are not that great if you compare with our ideas of development and happiness and all. तो ऐसे भाग में जब पहली बार हमारे लोग जाते थे और सोचते थे कि इनको कुछ सिखाएंगे, कुछ पढ़ाएंगे, उनको अभी मनुष्य बनाएंगे, we'll try to make them very, everything we'll give them.
तो व्यक्ति जीप से ऐसे, क्योंकि बहुत पहाड़ी इलाका है, वो जीप से ऐसे चढ़ के जा रहा है और हमेशा जीप बंद पड़ती है, फिर चालू करनी पड़ती है, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इवन गो बाय एनी व्हीकल। और वहां एक बुढ़ा आदमी, ये वेरियल एलियन ने उनकी फिलोसॉफी ऑफ नेफा करके पुस्तक है, उसमें लिख के रखा है ये प्रसंग, जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इंडिया इज एंड हैप्पीनेस इन इंडिया, ब्लिसफुल लाइफ और हेल्दी लिविंग, योगा इज, वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पीपल। तो ये उसने, जब भी वो एक बुढ़ा आदमी वहां से चल के जा रहा है, उसका एक पैर में कुछ ऑलमोस्ट लगड़ा है, बहुत बुढ़ा है, फिर भी वो पहाड़ चढ़ के जा रहा है क्योंकि वो हेल्दी है, उसमें ताकत है, पेशेंस है, स्टैमिना है। और जब भी ये एल्विन उसको पास करता था, वो आदमी उसको एकदम, ही हैज रिटन विद ए फुल 32 टीथ स्माइल, ऐसे एकदम पूरा स्माइल देके उसको हंसता था उसकी तरफ ठीक से। अरे एल्विन है, वो यहाँ गुस्से में है कि मेरी गाड़ी नहीं जा रही है, मुझे ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, और फिर थोड़ी देर के बाद जब ऐसा फिर हंसता था। So he has written that once, twice I can understand somebody is giving smile to you. Such a beaming smile, a common man in India can give you repetitively. He has no problem. आप उसको सिखा रहे कि कुछ प्रॉब्लम है दुनिया में, वो कहता है कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये जन्म नहीं हो गया तो अगले जन्म में करेंगे, हमारे तो पुनर्जन्म की सब कल्पना है, जो मैं अभी कुछ प्रॉब्लम है क्या, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जो कर रहा हूँ वो मेरे पिछले जन्म का काम है। दैट इज सच अ सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग लाइफ दैट यू कांट अंडरस्टैंड बाय बिग फिलोसॉफीज एंड साइकोलॉजिस्ट। कैसे है, मजे में, कुछ प्रॉब्लम नहीं। बीमिंग स्माइल, ही सेइंग, आई वाज स्टन्ड, आई डिसाइडेड टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस पीपल एंड व्हाट दिस लैंड इज। ये लिखा है फिलोसॉफी ऑफ नेफा में, आप देखिए। ऐसे उदाहरण हम जब देखते हैं तो प्रश्न पड़ता है कि वेयर इज द सोर्स ऑफ ऑल दिस थिंग्स, कहां से ये सब आया है। और जैसे मैं आपको कह रहा था कि ये सारा, मतलब ये हमारा वो भीलवाला या ये एल्विन को जो मिला वो वनवासी, हम उनको वनवासी कहते हैं। मैं भी जब वहां गया था, मैंने कहा था कि मैं उनको कुछ सिखाऊंगा। मैंने अपने पुस्तक में बाद में लिखा है, आर वी हियर टू टीच देम समथिंग और वी आर हियर टू लर्न फ्रॉम देम। ये प्रश्न पढ़ने लगा बाद में, तो दे हैव गॉट एवरीथिंग। आप क्या सिखाएंगे उनको, सिर्फ ये इंग्लिश और कुछ बड़े बड़े जार्गन्स। दे आर लिविंग वेदांता, दे नो व्हाट इज उपनिषद्स। तो जो स्वामी जी कह रहे थे बिल्कुल सच है। और इसलिए संतोषा अनुत्तम सुख लाभ, ये पतंजलि कहते हैं। और हमारे ये सारे वनवासी, हमारे ग्रामीण लोग, हमारे सो कॉल्ड अनपढ़ लोग, वो जीते हैं। आई कैन वाउच फॉर इट बिकॉज आई लिव्ड देयर। और गांधी जी जब पहली बार गए थे, मतलब मैं तो क्या हूं, मैं क्या बताऊंगा, लेकिन मैं कुछ बड़े लोगों का नाम लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। गांधी जी जब वहां कांग्रेस का अधिवेशन था तो वहां गए, और वो तब हिंद स्वराज और ग्राम स्वराज की वगैरह वो सब उन्होंने लिखा था, व्हाट शुड बी द आइडियल स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस। वो हुआ नहीं, ये अलग बात है, हमारे लोगों ने समझा ही नहीं। तो वो वहां गए और उन्होंने देखा वहां, और ही हैज रिटन अगेन, इट्स अ डॉक्यूमेंटेड पार्ट। ही सेज, व्हाई आई एम टॉकिंग ऑफ दिस राम राज्य एंड हिंद स्वराज, आई सॉ पीपल इन आसाम एंड दे आर एक्चुअली लिविंग इट, कि उनके यहाँ ऐसा ही चल रहा है। हम अलग से क्या सिस्टम वहां लेके आने वाले हैं, इनकी जो परंपरा में है, इनकी जो संस्कृति में है, वहां ये सब चीज पहले से है। सोचिए। तो वो कहते हैं, एक क्या है, एक आपको पुखरी चाहिए, पुखरी मतलब असमी लैंग्वेज में तालाब, छोटा सा पुखरी, एक मछली, पानी मतलब फिश, मछली मिलेगा, पानी मिलेगा, और एक अपना भात मतलब चावल, राइस फील्ड है, पूरा पैडी फील्ड। ये तीन मिलेगा तो आदमी को कुछ नहीं चाहिए, भात है, पानी है, मछली है। सो रिमेनिंग ऑल टाइम इज फॉर डांस एंड सॉन्ग्स एंड सेलिब्रेशन, ब्लिस, हैप्पी लाइफ, हेल्दी लाइफ। अभी मैंने बोला ना, 70, 80, 90 साल के लोग पहाड़ करके जा रहे हैं, थकते भी नहीं है, कुछ नहीं है। उनकी जो अभी की जनरेशन है वो नहीं कर पाती, बिकॉज दे आर मॉडर्न, दे आर नो वेस्टर्नाइज, so they walk few, 5-6 minutes they walk and say, oh no dad, I want something, I cannot walk like this. उनका ग्रैंडफादर है वो ऐसा छोटा सा लंगोटी, उनका जो ट्रेडिशनल ड्रेस और जैकेट पहन के, टोपी लगा के, टोपी में भी वो सब फिदर विदर डाल के जाते हो। दैट्स दी you can say pursuit of beauty in life. So when they are wearing that headgear, they will try to put something colorful in that, they will wear some colorful dress in that, उसमें वो काम करेंगे थोड़ा। एक एक जब कुछ ये बनाएंगे, वस्त्र बनाएंगे कॉटन का या सिल्क का या इसका, तो इतनी कलाकारी करेंगे उस पे। क्या ये है
आप समझिए मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप सब लोग योग तो आप सीखे, मैं उनका भी पतंजलि और हठ योग प्रदीपिका वगैरह बताना अच्छा ही होगा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारी संस्कृति में कैसा है। इट इज पार्ट एंड वेरी इसेंस ऑफ आवर लाइफ। तो वो क्या करेगा कि वो कुछ भी करोगा, आप तलवार बनाओ या आप शाल बनाओ या आप मुकुट बनाओ, कुछ भी बनाओ भारत में, उस पर आपको कलाकारी मिलेगी। डू यू एग्री विथ मी? उसमें नक्शी काम होगा, वो हस्ती दंता का हो या फिर वो आपके संगमरमर का हो, मार्बल का हो, वो लोहे, बाय द वे लोहा, चांदी, सोना, कॉपर, जिंक, सब में हम लोग माहिर थे। स्टेनलेस स्टील ओनली वी यूज्ड टू मेक, so that is a different story, but then they will not leave it as it is, because that is only utility of it. If you add art in that, it becomes beauty of it. So India is all about connecting science with art, connecting reason with the beauty, जिसको बाद में श्री अरविंदो कहते हैं सुप्रा रैशनल ब्यूटी एंड सुप्रा रैशनल रीजन। ऐसे उनके दो प्रकरण है। इफ यू वांट टू सी, यू कैन सी ह्यूमन साइकिल, देयर आर 2 डिफरेंट चैप्टर्स ऑन दैट। Sri Aurobindo has to explain it in a very profound language to the Western world, that there is a supra-rational beauty. There can be a beauty beyond reason. That is where Anand lies. You see, pursuit of beauty does not mean pursuit of hedonism in India. पाश्चात्य जगत में क्या हो गया, अगर आप कला के या सौंदर्य के पीछे जा रहे हैं तो वो उपभोक्तावाद हो गया, वो पूरा जड़वाद हो गया वो। लेकिन यहाँ हमारी नींव इतनी पक्की है अध्यात्म की कि हम लोग उसमें जाते नहीं। We were able to take that art with the science, with the rationality, with the beauty, and that is where bliss is. The bliss is nothing but the, see, scientist goes from one side, makes all the equations, बहुत सारे मैथमेटिकल काम करता है, फिर थक जाता है, वो बोलता है भाई बहुत हो गया, अभी मुझे आगे नहीं समझ रहा है, क्या भी करूँ, इतना गणित किया, इतना साइंस का ये किया, वो क्या किया, उत्तर नहीं मिल रहा है, एंड ही जस्ट गिव्स अप एंड सिट्स। कलाकार अपने कला का ध्यान आविष्कार करता रहता है, बहुत सारे आविष्कार करता है वो भी एक समय ऐसा रुक जाता है कि अभी और कुछ प्रेरणा नहीं मिल रहा है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट टू ड्रॉ, व्हाट टू मेक, कंपोज, यू नो, एक प्रकार का एक गैप आ जाती है उनके कलाकारी में। ये दोनों थक के एक वृक्ष के नीचे बैठते हैं और उनको पता नहीं वो वृक्ष भारत का कल्प वृक्ष है, और वहां से उनको वो आनंद का निधान, यू नो, कैवल्य का धाम, आनंद से डोही आनंद तरंग, वो वहां वो जो, दैट्स द मोमेंट ऑफ साइलेंस व्हिच वेदर यू गो इनटू द परस्यूट ऑफ साइंस और वेदर यू गो इनटू द परस्यूट ऑफ आर्ट, अल्टीमेटली यू विल रीच वन पॉइंट वेयर देयर इज नो गोइंग अहेड, and reach a point of nothing. That nothing is the silencing of your mind, and most of the innovations, most of the ideas have come from that aha moment. Today corporate world is working on that. What is that aha moment from where the creativity can come? तो ये बात है, यहां से आनंद आता है। आनंदम ब्रह्मे दिव्य जाना, आनंदा देव कल विबानी भूतानि जायन्ते। तो ये भृगु अपने पिता और उसके जो गुरु थे उनको जाके बोल रहा है कि मुझे बताओ आनंद कहाँ है, कहां से मिलेगा, वगैरह वगैरह, वो बता रहे। फिर गुरु बोलते हैं जैसे भारतीय परंपरा है, तुम जाओ ढूंढो, यू गो एंड फाइंड आउट ना, आई एम नॉट गोइंग टू स्पून फीड यू लाइक दिस, यू नो, ये अभी की नई प्रणाली हो गई, हर कुछ दे दो हाथ में, पूरा का पूरा दे दो, उसको कुछ करना नहीं है। नो, यू गो एंड फाइंड आउट, देन आई विल करेक्ट यू, इफ यू आर रॉन्ग आई विल करेक्ट यू। जाके देखता है, एंड नाउ विल कनेक्ट विद साइंस एक्चुअली, एज आई सेड द सेम स्टोरी। जाता है, देखता है कि ये सारा फिजिकल वर्ल्ड है, ये ऑल फिजिकल थिंग्स, यू नो, आई कैन सी दिस माउंटेन्स एंड रिवर्स and people and their cells and the atoms and then molecules, everything. That means this is what is life, physical being, annam, जो हमने अभी लिया, उसमें आनंद है ना, अन्नम ब्रह्मेति वे जाना, उससे आनंद क्या है, भूख लगी है खाना खाया, that is the best thing one can do. So annam brahmeti वे जाना, the physical world is the reality, that is where Newton and Kepler, Galileo were. And then the father says, you're right, perfectly right, but why can't you little bit explore more, you know, थोड़ा सा और देखो और आगे जाओ। फिर बच्चा जाता है, फिर सोचता है, तो अच्छा इसके पीछे तो एनर्जी है, ये कैसे चलता है, मुझे लगा ये सिर्फ मटेरियल है, उसके पीछे तो कोई नदी बहती है तो उसकी अपनी शक्ति है, पवन की शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। सो प्राणम ब्रह्मेति वे जाना। फिर बोलता है, पिताजी बोलते हैं नहीं ये भी अच्छा है, एनर्जी इज यस बेटर अंडरस्टैंडिंग देन द फिजिकल रियलिटी, बट व्हाई कांट यू गो बैक। फिर जाता है, अभी आपको पता है, फिर आगे जाता है, फिर वो
कोश में जाता है तो पंचकोश की कल्पना वहां से आती है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। हाँ, मन से सब कुछ है, क्योंकि माई माइंड इज एक्चुअली मोर पावरफुल देन द एनर्जी, इट इज इवन मोर पावरफुल देन द फिजिकल थिंग्स। आई अंडरस्टैंड नाउ फादर, एम आई राइट? एब्सोल्युटली राइट, बट नॉट कंप्लीटली राइट। व्हाई कांट यू गो अहेड एंड ट्राई? यहाँ आज का विज्ञान आ गया, मनोमय कोश में वो आ गया, जो हम लोग आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थियरी कहते हैं या बाकी सब कहते हैं, वो यहाँ पर आ गया। Because now we say if an electron is spinning in the clockwise direction in the universe, there is another electron which can turn into an anti-clockwise direction instantly. That is called action at a distance. Now we talk of quantum entanglement. Now we talk of so many things in quantum mechanics. So now we have realized, as the famous scientist says, we thought universe is a giant machine. It's not machine actually. Annamay kosh laga tha pehle. It's not machine, it appears as a profound thought. एक गहरा विचार लग रहा है किसी के मन का, फिर किसके मन का विचार है? That is the मनोमय कोशा, where science is right now, and they think they have done good progress, absolutely good progress, but they have yet to come to विज्ञानमय and आनंदमय। ये हैप्पीनेस खाली बोल के नहीं होगा, वो आपको वो जो अनुभव है, वो जो यथार्थता का, कृतार्थता का अनुभव है, समाधान का अनुभव है, वो सुख में नहीं है। सुख का हैप्पीनेस की कल्पना, सुख की कल्पना अलग है। जब भी सुख आता है तो अपने सर पर दुख का मुकुट लेके आता है। सुख और आनंद अलग है। सुख वस्तु में आता है, लेकिन वस्तु चली जाती है तो सुख भी चला जाता है। इसलिए सुख आता है तो हमेशा अपने सर पर दुख का मुकुट लेके आता है, दुख आता है तो हमेशा पीछे सुख का साया लेके आता है। दे बोथ आर कमिंग इन पेयर आफ्टर ईच अदर, एंड दैट इज व्हाट मेक्स अस मोर पेनफुल। You see, it is the glimpse of milk which tortures. Otherwise, even the flow in the water was tasty for Ashwatthama. अश्वत्थामा को बचपन से उसकी माँ ने दूध नहीं था, दरिद्रता थी, और बच्चा कह रहा था मुझे दूध चाहिए, दूध चाहिए। तो फिर माँ ने कहा यही दूध है बेटा। और वो आटा पानी में, आपको पता होगा महाभारत ऐसा है कि उसमें आपको सब मिलेगा, तो उसको वो दिखती थी और कहती यही दूध है, यही दूध है। बच्चा आराम से पीता था, बच्चा उसमें सुख पाता था। He was getting complete happiness in that. Why? Because he was not knowing that it is not milk. So is the happiness in the object? Had it been the object, then the flow in the water would not have given him that. It is not in that. It is in what you receive from it. आपको उसमें क्या मिला, आपने क्या सोचा? माँ की ममता देखी, माँ का विश्वास देखा, इससे सुख मिला आपको। माँ ने आपकी भूख मिटाई, प्यार, माँ ने आपका कहना माना, इससे आपको सुख मिला। So we go to external object and try to attach with that. A part of us becomes one with that. माँ और बेटे में ऐसा होता है, बाकी भी दो व्यक्तियों में ऐसा होता है कि वो एक का भाग, इसलिए जब वो दूर जाता है तो माँ भी तड़प जाती है, because already some part of her has gone with her, with that person, that son or daughter. लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि कभी न कभी ये जो मुखौटा है वो गिर जाता है। जब दुर्योधन ने पहली बार अश्वत्थामा को आमंत्रण दिया, उसको अपना बनाया, जैसे कर्ण का भी अलग, एक और ही अलग साइकिल, दिस आर ऑल साइकोलॉजिकल थिंग्स, यू नो, इफ यू अंडरस्टैंड द होल इंडियन स्क्रिप्चर्स, डीपली साइकोलॉजिकल, तो एंड स्पिरिचुअल ऑफ कोर्स, अपार्ट फ्रॉम बीइंग हिस्टोरिकल। तो जब ये उसको देखा उसने, और दुर्योधन ने कहा कि चलो आज हमारे यहाँ मसाला दूध की दावत है, आप सबको अच्छा हम दूध पिलाएंगे। उस समय actual milk was first taken by Ashwatthama. So far he was taking milk, but that was milk given by his mother, and he was very happy with that. Now this actual milk is not making him happy, because he realized he has been cheated by his mother all these years. तो उससे पूछा 4-5 लोगों को, ये दूध है? मैं तो कुछ दूसरा देख रहा था दूध को। नहीं बेटा यही दूध है, नहीं महाशय यही दूध है, पूरी दुनिया इसी को दूध कहती है। फिर मैं क्या पी रहा था बचपन से, what I was doing? You see, it is not the object milk which has given him that happiness, rather it has created unhappiness in his mind, a perpetual wound that I have been brought up with cheating, I have been brought up with lot of things hidden from me. Why? So that's the beauty we have to understand. It's not the glimpse of the milk which, you know, what happens is when that reality dawned on him, तभी उसको पता चला कि क्या है उसमें मतलब। उसके बाद वो कभी सुख से नहीं सोया। आई एम वेरी श्योर ही कैरीड दैट वुंड थ्रूआउट हिज लाइफ। इट्स अ क्लासिक केस स्टडी अश्वत्थामा।
Anyway, that's a different thing, but what we are talking here is the Indian idea of this, ये है कि आपको उस वस्तु में अगर होता तो वो वस्तु हमेशा वैसी ही थी, आपका उसके साथ जो संयोग था वो उसको सुख या दुख दे रहा था ना। तो वो जब अनुकूल वेदनीयम सुखम प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, अनुकूल वेदना हो गई तो उसका सुख हो गया, प्रतिकूल थी तो दुख हो गया उसका। सो इट्स ऑल व्हाट यू डू विद दैट ऑब्जेक्ट और दैट एक्सपीरियंस इनसाइड यू। तो फ्रैंकेल जो बहुत बड़े विचारवंत है, और द्वितीय विश्व युद्ध में आपको शायद आप सब लोग जानते होंगे कि वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में थे, फिर उन्होंने वहां से अपनी एक फिलोसॉफी और साइकोलॉजी की सारी बात उन्होंने रखी। What happens when somebody is in a concentration camp? He doesn't know tomorrow what is going to happen with him. There is no even humanness left in that entire. I know. Can we imagine Nazi people torturing in the name of something? हमको इसको करना है, वो करना है, जो भी इनकी फिलोसॉफी थी, सब गलत ही थी। But that person, even in that environment, he was able to write a new psychological theory of philosophy. When it came out, that became a great game changer for the world of philosophy and psychology. What he says is, because the famous Pavlov experiment of West was, there is a stimulus and there is a response. बाहर से एक स्टिमुलस आता है, आप उसको रिस्पॉन्स देते हैं, ये उनकी थियोरी है। जैसी क्रिया वैसी प्रतिक्रिया। एक कुत्ते को पाव रखा, वो उसको जाके खाया, दूसरे दिन आपने और वहां एक बेल रखी, फिर दूसरे दिन बेल बजाई, कुत्ता वहां गया, फिर पाव दिखा। ये दिस इज द थियोरी दे आर मेकिंग, एंड देन वी वांट अस टू बिलीव इन दिस। हम लोग तो यहाँ याज्ञवल्क्य, मैत्री और गार्गी और यहाँ भृगु वारुणी की बात कर रहे हैं। यू आर टॉकिंग ऑफ कुत्ता एंड मेंढक एंड ऑल, लेट इट बी फॉर यू, वी हैव समथिंग बेटर टू अंडरस्टैंड। So he says this is how the mind behaves. There is a stimulus, there is a response. There is a stimulus, there is a response. So even other day I will not keep the bread, but if I just ring the bell also, the dog is going to go there because he is conditioned like this. But Frenkel, after his all experience in this concentration camp, he sets a very different tone, which is unmistakably Indian. जब भी कोई बात ऐसी करता है तो वो हमेशा भारतीय बात करता है, चाहे कहीं पर हो, यूंग हो या फ्रैंकल हो या कोई भी हो, विल्बर हो। तो ये कह रहा है वहां पर कि बिटवीन द स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स आई रियलाइज देयर इज अ गैप, देयर इज अ मोमेंट वेयर आई हैव अ फ्रीडम टू चूज व्हाट शुड बी माय रिस्पॉन्स। स्टिमुलस का रिस्पॉन्स वैसा ही मैकेनिकल जाए, ये तो प्राणी जगत की बात हो गई, फिर मनुष्य में और प्राणियों में फर्क कहां है? मुझे स्टिमुलस मिल गया और मुझे रिस्पॉन्स देना है, कि दो घटनाओं के बीच में एक अंतराल है, एक गैप है। That gap is entire philosophy, spirituality, yoga for us. That gap, we should be able to understand. There is a gap. बाहर से कुछ भी हो जाए, कुछ भी कोई कहे, क्या कहे, कुछ कहे, मुझे दुख होता है क्योंकि मैं रिस्पॉन्स मेरा मैकेनिकल देता हूं उसको। Can you just wait and watch and try to decide yourself that this is going to be my response to you? जैसे बुद्ध को किसी ने कहा था, ऐसी कथा कहते, बहुत सारे लोगों के बारे में कहते हैं, ये दिया, वो दिया, ये दिया, तो फिर बहुत सारी गालियां देने के बाद वो तथागत बुद्ध वैसे ही शांत थे। तो उनको बोला कि महाराज, मैं इतनी सारी बातें आपको बोल रहा हूँ पिछले आधे घंटे से, ना आपकी कोई प्रतिक्रिया है, ना आप कुछ बोल रहे हैं मुझे, आप कुछ तो बोलो। तो बोले कि बोलना आपका स्वभाव है, आप बोलते रहो, मैंने थोड़ी ना लिया है उसको, तुम्हारे और मेरे बीच में एक अंतराल है, उस अंतराल में मैं हूँ। आई डोंट वांट टू रिस्पॉन्ड टू यू, आई मीन यू डोंट डिजर्व दैट एक्चुअली। तो ये है, बाह्य जगत के सारी क्रिया में आपको प्रतिक्रिया नहीं वैसी देनी पड़ेगी अगर आप योगाभ्यासी है, अगर आप ऐसे विषय में हैं, और वहां आनंद है। There is a gap between two stanzas of a song. There is a gap between two words of a sentence. There is a gap between two, he takes one तबला पखवाज या ऐसा कोई बजाने मृदंग वाले आप में होगी तो आप जानेंगे, वो जब एक बजाता है ना तो उसके एक बीच में थोड़ा गैप रखता है, वो फिर बाद में बजाता है। There is a gap between two people who feel that they cannot do anything without each other, they cannot live, they cannot die if you are not there, and still there is a small gap between them. That is the wound of creation. वो उस गर्भ से सारी सृजनशीलता आती है, ये हम समझना है। इसलिए आप कोई भी भारतीय शिल्प देखिए, कोई भी स्थापत्य कला देखिए, इस सब में आप देखेंगे कि कोना कोना भर चुका है, कोना कोना उन्होंने कुछ ना कुछ इनग्रेव करके रखा है,
लेकिन दो इसके बीच में छोटी सी गैप है जहां कुछ भी नहीं है. दैट स्ट्रिप कैन बी नैरो, बट दैट स्ट्रिप इज वैकेंट, एंड दैट स्ट्रिप इज वैकेंट बिकॉज ऑफ दैट द एंटायर शिल्पा इज गेटिंग इट्स ब्यूटी. वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. सुबह हमारे जोशी जी कह रहे थे कि वो द्वंद्व है दोनों में, मेंटल बीइंग एंड फिजिकल बीइंग. तो है, बिल्कुल है. पैराडॉक्स भी है, विरुद्ध धर्मी. और साइंस भी ऐसे ही पैराडॉक्स में आ गया. वेदर इलेक्ट्रॉन इज वेव और इट इज पार्टिकल, वेदर इट इज गोइंग और नॉट गोइंग. इतने फ्रस्ट्रेट हो गए, बोले रियलिटी है या नहीं है एक्चुअली. टुडे मंडे द इलेक्ट्रॉन इज पार्टिकल, ट्यूसडे इट इज वेव, वेडनेसडे अगेन इज पार्टिकल. ऐसे एकदम सार्कास्टिक उनके रिमार्क है. लेकिन भारत को ये प्रश्न नहीं आया, भारतीय लोगों को, क्योंकि हमें पता है कि सत्य जो है वो विरुद्ध धर्मी है. पैराडॉक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ नेचर. India has understood it. We can live with paradox, and when you can live with paradox, you are close to the bliss. You are yoga, in the path of yoga, because yoga says like this only. Enjoy the pain. हम जब योगा करते थे, हमारे शिक्षक हमको कहते थे, अभी लास्ट स्टेज में आ गए, अभी कंटिन्यू करो, सर बहुत पेन हो रहा है, एंजॉय इट. एंजॉय. अभी मेरा स्टेज छोड़ा है, मेरा थोड़ा और एंजॉय करो, उसमें रहो, ठहराव दे दो. यू नो द होल क्रक्स. ऑल दिस पीपल विल टेल यू कि वो जो लास्ट में आप वेट कर रहे थोड़ा सा, एम आई राइट सर, उसमें सारा मजा है. और मजा क्या, मेरे को पेन हो रहा है. दैट्स द पैराडॉक्स. यू आर जस्ट क्रॉसिंग द लिमिट्स व्हिच यू आर सेट फॉर योरसेल्फ. ऑल लिमिट्स व्हिच यू थॉट आर देयर आर एक्चुअली सेट बाय योरसेल्फ. क्रॉस इट. मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो. आपके कारावास में होने का कारण कौन है? आपका मन है. आपके मुक्त होने की चाबी कहां है? आपके मन में है. थोड़ा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए. सब दिखाता है. नथिंग कैन बी हिडन फ्रॉम इट. राइट. सो दैट्स द ब्यूटी. मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो. माइंड इज द रीजन ऑफ योर प्रिजन. Why I am in prison? Everybody is torturing me. Everybody makes fun of me. Nobody cares for me. That is because of your mind is like that. You have made yourself prisoner. And how you can be free from that? How you can liberate it? Using your mind. Use your mind for that. ये स्वातंत्र्य हमें मिलता है. जब स्वातंत्र्य मिलता है, उसी में हमें आनंद मिलता है. तो ये मनोमय कोश तक तो विज्ञान आ गया कि ये उन्होंने जाना कि इस प्रकार से ये what can travel better than light and all that can be a mind. Okay, fine. अभी वो ऐसा बोल रहे हैं कि विज्ञानमय कोश आनंद पे भी हमको मिल गया, but that is something still more, you know, क्योंकि वो जो है वो मन के ऊपर की अवस्था है. विज्ञान मन के ऊपर अभी तक जा नहीं पा रहा है, because you cannot go there by using the organs of knowledge or organs of, you can say, organs of action. ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय. न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक्. तो वहां आंखें नहीं जाती, वहां कान नहीं जाते, वहां वाणी नहीं जाती. उसको ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे? जब तक ये इंद्रियों में रहेंगे तब तक सुख और दुख के इसी में रहेंगे. आप पेंडुलम में घूमते रहेंगे. तो गीता में कहा भी है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा अगवा पाइनो नित्या तामसी तिक्षस्व भारत. सहन करो उसको. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, कौन्तेय अर्जुन को कहा है, कुंती का पुत्र. तो शीत है, उष्ण है, सुख है, दुख है, ये तो ऐसे होता ही रहेगा ना. उससे कैसे बाहर निकलोगे आप? ओनली व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट द थिंग इज बियॉन्ड इट. अगर उसमें नहीं आप समझ रहे, तब तक प्रतीक्षा करो, सहन करो उसको. ट्राई टू गो थ्रू दिस पैच. क्योंकि जो भी इंद्रियों के मार्फत मिला हुआ सुख है, जो भी फिजिकल कांटेक्ट की वजह से या फिजिकल ऑब्जेक्ट के आकलन की वजह से या आपके संपर्क की वजह से मिला हुआ सुख है, वो और कुछ भी नहीं, वो दुख का ही कारण है. यही संस्पर्शजा योगा, यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवति. अल्टीमेट है. आई थिंक दिस इज अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस ऑफ ब्लिस. सो इफ anything which is born, the pleasures which are born from the contact are wombs of pain. Therefore, try to go beyond both pleasure and pain. You do not want iron chains and you do not want golden chains also. मुझे
लोहे की जंजीर नहीं चाहिए भैया, आपको सोने की जंजीर भी नहीं चाहिए। ऑल running around with the transient pleasures of this world is nothing but shifting from the iron chains to the golden chain, but both are chains only. You need to go beyond that. जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि आप जा रहे थे भगवान के मंदिर की तरफ और रास्ते में एक बच्चा था, उसको एक मिठाई का दुकान मिला और वो वहां रुक गया और उसका भगवान की तरफ जाना वो भूल गया, मंदिर को जाना भूल गया क्योंकि मिठाई की दुकान मिली। दूसरे को एक मिर्ची की दुकान मिली, वो उसका वो खाट बोलते हैं ना हम लोग मराठी में, ऐसा ऐसा उसका एकदम ये आता है, तीव्र गंध आता है कि आगे जाना मुश्किल हो गया, इसलिए वो भूल गया कि मंदिर जाना था, वहां से लौट गया। आप मिर्ची के दुकान की वजह से परावृत्त हो गए या मिठाई की दुकान से परावृत्त हो गए, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप भगवान की तरफ नहीं गए, इससे फर्क पड़ गया। करेक्ट? आप कौन से दुकान से रुक गए, ये आपकी बला। So you need to understand, I do not want iron chains as well as golden chains. I do not want mirchi dukan as well as the मिठाई दुकान. Both are going to take me away from my way. तो ये आनंद मीमांसा है। इसलिए वो बच्चा कह रहा है कि ये अभी इसके आगे जो जाना है ना, विज्ञान में कोर्स मतलब जिसको सुपरामेंटल सुपर माइंड कहते हैं, वो मतलब इट्स गोइंग बियॉन्ड दी हाउ मच टाइम, आई गॉट सम मोर टाइम। सो वहां जाना है तो आपको फिर you have to take the springboard of mind only, because mind is the most developed organ human beings have got. We are the mental being. So जो धर्म या जो लोग कहते हैं कि आपको अभी ये छोड़ दो क्योंकि इससे आपका नुकसान हो गया, इससे आप बंधन में आ गए, they are making mistake because you cannot go ahead with blind faith. You again require rational thinking only to go beyond. But your instruments are going to be more subtle. आपकी प्रणाली अलग होगी। तो स्वामी विवेकानंद ने बहुत सुंदर कहा उनके राजयोग में कि if at all there is any religion or any culture which is scientific, you look at us only. We are only scientific people. क्योंकि जैसे एक विज्ञान को क्या करता है, उसको एक्सपेरिमेंट करना है, एक लैब में वो एक्सपेरिमेंट करेगा, उसका निरीक्षण करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, उसके कंक्लूजन निकालेगा और फिर उसका नियम बनाएगा। He will find out a law of it, law of physics, law of chemistry, law of astrophysics, some law he will find and then generalize the law. That's the method of science. That's the method of yoga also. स्वामी जी says, योगा में वही कर रहे हैं हम। फर्क इतना ही है कि हमारी लैबोरेटरी अभी हम खुद है। We are experimenting on our own mind and our inner self, and in that we are using entire scientific method. Therefore, difference is, बाकी लोगों ने कहा कि हमारे व्यक्ति ने ये कहा, अभी आपको वो मानना है, हमारे पुस्तक ने कहा आपको ये मानना है। लेकिन स्वामी जी कहते हैं केवल हमारे यहाँ ये कहा गया कि उसने कहा, उसको अनुभव आया, आपने अनुभव करना है तो आप भी वो करो जो उसने किया, आपको अनुभव आएगा। This is experimentally verifiable and you can say very scientifically laid down truths of life. अगर उसको ऐसे करके आनंद मिल गया भृगु और वार्णी को, आपको भी मिलेगा। अगर रैका ने कुछ कहा राजा को और वो उसको समझ में आ गया तो आपको भी समझ में आएगा। इट्स ऑल पॉसिबल। देयर इज नॉट दैट ओनली वन पर्सन वन बुक हैज सेड एंड यू हैव टू बिलीव इट। यू डू इट योरसेल्फ। आप वही प्रोसेस को फॉलो करो, आपको वही उत्तर मिलेगा। जैसे कोई भी अगर कोई चीज ऊपर से फेंकता है तो वो नीचे जाती है क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज यूनिवर्सल लॉ। वैसे ही लॉज ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड आर यूनिवर्सल लॉ, स्वामी जी कहते हैं। एंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दैट, द बेस्ट वे इज योगा। योग आपको वो माध्यम दे रहा है कि आप वो वेरीफाई कर सकते हैं, प्रोसेस ड्रिवन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो अभी वो तर्क के आगे ज्यादा है, वो प्रवास अभी है, अभी वहां विज्ञान नहीं आया है। जो भी वो क्वांटम वगैरह कह रहे हैं, वो क्वांटम भी अगेन इट इज इन द रैशनल वर्ल्ड ओनली, दे आर नॉट एबल टू ट्रांसेंड दैट। उसके बाद फिर ब्लिस या आनंदमय कोश आएगा। इसका अनुभव हम लोग इनडायरेक्टली ले रहे हैं। वी हैवंट गॉट प्रोसेस ऑफ इट नाउ, आई एम सेइंग, एक्सेप्ट सम योगीज। तो इनडायरेक्टली ले रहे हैं। जैसा मैंने कहा, सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी आनंद का अनुभव ले रहे हैं, परमानंद का अनुभव लेते हैं। जैसे उपनिषद कहते हैं कि विल क्वांटिफाई कि आशिष्ठो धृष्ठो बलिष्ठ, ऐसा युवा आप इमेजिन करो, जो युवा है, बलवान है, बहुत विद्वान है, बुद्धिमान है, दिखने में भी बहुत सुंदर है और सारी दुनिया की विद्वत्ता उसके, सारे वेद उसको मालूम है, सारी विद्या उसको मालूम है, तो सारी दुनिया की संपत्ति भी उसके पास है। जस्ट इमेजिन वन पर्सन लाइक दिस, youth with all energy and all wealth of the world, all knowledge of the world with him, and also good looking, everything powerful. तो उसको आनंद होगा कि नहीं? ऐसे व्यक्ति को आनंद होगा with all that achievement or whatever he got. So you see that this is 10⁻⁴ आनंदा. You think this is just minimum आनंदा, मनुष्य आनंदा, ये तो minimum मिलेगा आपको। If you go to your human capacities and capabilities to the maximum extent, this is what you can reach.
फिर उसका 10⁻² क्या होगा, 10⁻³ क्या होगा, 10⁻4 क्या होगा, ऐसे वो उसको गणित के भाषा में बोलते जा रहे हैं। और जब वो ये आनंदवल्ली हो गई, भूगोली में आप उसको पंचकोश में लेके जा रहे हैं, और एंड में ऐसी इतनी सुंदर है वो कथा में कि वो जब आगे जाता है, विज्ञानमय कोश के भी आगे जाता है, पिताजी को पूछता है कि हाँ आनंद में सब कुछ है, अभी पता चला ये विज्ञान में भी नहीं है, आनंद में भी है। विज्ञान इज नॉट साइंस, आई एम सेइंग इट्स सुप्रामेंटल। तो फिर आके बोलता है हाँ आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात आनंदा देव कल्विमानी भूतानी जायन्ते, उसमें ही जन्म लेते हैं, उसमें ही रहते हैं, उसमें ही हम लोग चले जाते हैं। आनंदे न जातानि जीवंती आनंदम प्रयत्न भी संविशंति तद विज्ञाय पुनरेव वरुणम पितरम उपससार अधी ही भगवो ब्रह्मेति। तो उसको कदम्भो वाच्यो, अरे बहुत सुंदर है वो। तो वो जो आनंद के बाद में वो बोलते हैं कि हाँ अभी मेरा हो गया, मुझे समझ में आ गया कि आनंद ही सब कुछ है, देन ही डजंट कम बैक टू द फादर। उसको जरूरत नहीं अभी वेरीफाई करने की। इफ यू गेट द ट्रूथ यू डोंट हैव टू वेरीफाई विद समबडी। तो जो सच्चा ज्ञान होता है वो डाउटलेस होता है, देयर इज नो डाउट, देयर इज नो वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर दैट, ऐसी वो कथा में आता है। आई थिंक दिस इज व्हाट आई कैन गो अहेड आल्सो। तो मुझे पता नहीं क्योंकि ये लंच के बाद का सेशन है, इसलिए मैं थोड़ा बार बार पूछ रहा हूँ। दिस इज सेशन इमीडिएटली आफ्टर लंच, सो आई शुड बी केयरफुल। तो ये है जो हम कह रहे थे ना कि ये जो ब्लिस है, आनंदमय कोश है, इसका अनुभव हमें कभी कभी आता है। योग आपको उसका अनुभव देता है। योग का आप आसन प्राणायाम धारणा ध्यान ऐसा सब करते, अष्टांग योग करते तो भी आता है, लेकिन उसके बिना जैसा मैंने कहा ना हमारे रोज के जीवन में भी आता है कि हमें यह समझ में आता है कि वस्तु में सुख नहीं है, मेरे तादाम्य होने में सुख है। कैसे आता है, छोटी छोटी उदाहरण हम देख सकते हैं कि कोई कहता है कि मुझे ये बात अच्छी लगती है, मुझे ना हमेशा ट्रेन का प्रवास अच्छा लगता है, आई एंजॉय इट। सब लोग दिखते हैं, बाहर का सीनरी दिखता है, 5-5 मिनट के बाद अलग अलग खाना लेके कोई आता है, यू कैन एंजॉय इट। अलग अलग भाषा बदलती रहती है लोगों की। वंस आई ट्रैवल्ड फ्रॉम त्रिवेंद्रम टू गुवाहाटी, आई एंजॉयड इट। 72 घंटे लगे उस जमाने में ऐसी फास्ट ट्रेन नहीं थी, और मैं गुवाहाटी में प्लेसमेंट मतलब मुझे प्लेस किया था वहाँ। तो लोगों को मैंने बोला कितने घंटे प्रवास किया, मैंने बोला 72 आवर्स प्रॉपर जर्नी, बट एक्चुअली इट वाज लेट बाय अनदर 8 आवर्स, सो इट इज 80 आवर्स। तो कैसे बैठे तुम, व्हाट यू डिड, इट इज इम्पॉसिबल फॉर समबडी टू सिट 80 आवर्स इन वन कंपार्टमेंट। आई सेड आई एंजॉयड इट। तो मेरे पूरा ऑलमोस्ट एक भारत का पूरा क्रॉस सेक्शन मैंने देखा ये 3 दिनों में। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू टेक इट, यू नो, अदरवाइज थिंग्स आर गोइंग टू बी सेम। तो ये उसी समय अगर दूसरा कोई व्यक्ति था, वो किसी अपने नजदीक व्यक्ति का मृत्यु हो गई है, उसके अंत्यकर्म के लिए जा रहा है, उसी ट्रेन में मेरे सामने बैठा है, और मैं उसको बोलूँ एंजॉय करो, वो एंजॉय नहीं करेगा वो, बिकॉज इवन दो ट्रेन जर्नी इज सेम, हिज माइंड, हिज मनस्थिति इज डिफरेंट। So it all depends on what you are inside, not outside. That's why I said no, there is a difference between stimulus and response. There is a gap between that. उसके मन में अभी आनंद जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो सोच रहा है जाना है, अभी वो 13 डे है, वो सब कर्म करने हैं, उसको वापस आना है, पता नहीं अभी क्या होगा क्या होगा। He cannot enjoy that journey. I can enjoy, क्योंकि मेरी उस समय स्थिति अच्छी थी। तो वही होता है आनंद मीमांसा में, यही बात है। जैसे अल्प में सुख नहीं है, नारद सनत कुमार की एक कथा कहते, उसमें सनत कुमार नारद को समझा रहे, नारद ने उसको बहुत सुंदर सवाल पूछा था। वो बोलते हैं कि मैंने सारी विद्याएं पढ़ ली, मैंने सब कुछ देखा, मैंने सारी चीजें दुनिया की देखी, लेकिन सुख नहीं मिला, वो नहीं मिला मुझे, कहाँ मिले? तो उसको उत्तर में बहुत सुंदर बता रहे कि देखो एक बात समझ लो आप नारद जी, अल्प में सुख नहीं है, अल्प जो भी है, शांत जो भी है, उसमें आपको कभी भी सुख नहीं मिलेगा। व्हाट अ मास्टर स्ट्रोक, अल्टीमेट। व्हेनेवर आई सी सम सेंटेंस लाइक दिस, मुझे लगता है बस हो गया, अभी अब क्या क्या जीना है, मतलब व्हाट आई एम गोइंग टू डू आफ्टर दिस, गॉड गिव मी दिस सेंटेंस टू रीड, आई रेड दैट, इट्स एंड ऑफ माय यू नो बीइंग हियर। मैंने इसको आज अटर किया, और क्या बताना, क्या सुनना, क्या कहना है, क्या सुनना है, तुमको पता है, मुझको खबर है। तो इट्स लाइक दैट, we don't have to tell, you know, the best things of the life are not told, not heard, they are just understood. I said this is a moment of silence in which we understand the things. Other things are just talking and listening, but there is a silence, there is one realization, oh अल्पे सुखम नास्ति, अल्प में सुख नहीं है, बस हो गया। आप कुछ भी चीज करते हो तो वो खत्म हो जाती है, जब खत्म होती है तो दुख होने लगता है।
आपको कोई व्यक्ति अच्छी लगती है, बाद में वो दूर जाती है, दुख होने लगता है। आपको कोई वस्तु अच्छी लगती है, वो खत्म हो जाती है, दुख होता है। तो आइसक्रीम के पिघलने तक हमारा सुख रहता है, आइसक्रीम पिघल गया तो सुख चला गया, दुख शुरू हो गया क्योंकि आइसक्रीम चली गई। अभी आप दूसरी आइसक्रीम ले लो, फिर आपको थोड़ा सुख, बट पहले जैसा नहीं मिलेगा। सी ब्यूटी, योर सेकंड phone is not going to give you the same happiness as the first one. Then somebody says take the third one, either ice cream और गाजर हलवा, जो भी आपके मन में अभी जा रहा है वो करो। पहले बार वो सर्व, बहुत इतना सुंदर हॉस्पिटैलिटी, वो पहली बार सर्व कर रहे थे, बाद में 2 मिनट के बाद खत्म नहीं हुआ तो उसके पहले बोल रहे और चाहिए और चाहिए। हमने बोला भाई नहीं और नहीं चाहिए, पहला ही खत्म होना है अभी। तो जस्ट इमेजिन वॉट एवर यू लाइक, द सेकंड पार्ट हैज कम, द थर्ड हैज कम, फोर्थ हैज कम। बट द पॉइंट इज, जब पहला आपने खाया, जो भी आपको अच्छा लगता है, that first dish or the first phone or whatever, it will give you immense pleasure, immense happiness. The second will give you happiness but slightly less than that. Third will give you still lesser happiness. Fourth will give you still lesser than that. A point will come where it will not give you happiness at all. The fifth time gajar halwa has come to you, अब बस हो गया भाई और कितना खाएंगे, but you like it, no? You told me you like it. I like it but not this much. I mean you are making too much of it. लाइकिंग का भी एक मर्यादा है। आपने पहली बार दिया तो मैंने खुद ही वहां कहा ना आपको, फिर आपने लेके आए, फिर 2 मिनट के बाद लेके आए और एक, isn't it our experience? So happiness was there in that first experience. It reduced in the second, it further reduced in the third, it further reduced in the fourth. A time came when it ceased to give happiness. And if the experience still repeats, उसके बाद भी वापस कोई लेके आया, नहीं भाई लेना ही पड़ेगा, यहाँ का नियम है 10 बार तो खाना ही पड़ता है। क्या नियम है? कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे, 10 बार खाना, मैं नहीं खा पाऊंगा, नहीं लेना पड़ेगा अभी आपको, ये दिस इज द रूल ऑफ दिस। सो दैट स्टार्ट्स गिविंग यू डिससैटिस्फैक्शन। इट फर्दर, if you are forced to do that, it becomes a punishment. So the same thing which before some time in your first experience was giving you immense happiness, ceased to give that, one by one, and ultimately it is started giving you pain. Was the happiness in the object? No. The happiness was in that first experience, which was novel. अभी नहीं आएगा वो बात में। तो इसलिए पहली मुलाकात, पहली बारिश, बारिश की पहली बूंद, पहला खाया हुआ मिठाई का टुकड़ा, पहली बार किसी चीज को देखना, सोचो क्या आनंद था। जस्ट रिमेंबर इट फ्रॉम योर लाइफ, जस्ट क्लोज योर आइज एंड रिमेंबर, पहली बार हुआ था तो क्या हुआ था। So that's the problem with most of the marriages, is a problem with most of the marriages. तो फिर एक दूसरे को कोसते हैं, आप तो पहले ऐसे नहीं थे, उस टाइम तो कैसे थे आप। फिर वो भी बोलेगा तुम भी तो ऐसी नहीं थी, तुम भी कितनी अलग थी। एक्चुअली दिस इज प्योर साइकोलॉजी ऑफ ब्लिस ऑफ योगा फॉर द हेल्थ। द पर्सन इज सेम, ही इज टॉकिंग आल्सो सेम, बट नाउ इट हैज रिपीटेड सो मेनी टाइम्स and the novelty is lost, the newness is lost, the repetition has become too much. The thing which gave you pleasure now has given you like a punishment. It's a punishment है, बार बार वही चीज कहती है। So this is the way you understand this whole science. It's purely science, beautiful science, I think, and that's just I'll take one point and I'll stop for here. कि यहाँ पर हम लोग जैसा कह रहे थे कि आधुनिक ज्ञान कहता है कि ये राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन का काम है। देयर इज अ रीजन इन दी left brain, reason, rational, mathematics, science, and right has got the art, intuition, creativity, etc. But if you really want to have this yoga of bliss, blissful health, then we should inculcate this habit of integrating right and left. There lies the silence, there lies the bliss. वैसा ही हमने किया था। हमारी सारी कला, हमारे सारे शास्त्र इसी पर निर्भर थे कि हम जब वाल्मीकि के मन में जब शोक भी आ गया तो हमारे बाकी बाप कोरकर कहते हैं शोक हवा परी वाल्मीकि समज सश्लोक हवा, हर्ष हवा परी स्पर्श मण्या परी त्या तर हवा आलोक हवा, स्वर्ग नको सुरलोक नको तद नित्य नवा यह लोक हवा. That's the beauty of it. Even if there is a pain, let my pain be as gigantic as Valmiki. I'll write a Ramayana from that. Because that freedom is inside you. You're not exercising it. So that's the way we have been given this great heritage of, you can say,
yoga of blissful health. If you come to the modern world also, just to take a small example, okay, now they say what is happiness? It is in modern psychology they say it's a state of emotional well-being. It is person experience of specific moment, and then they do experiments like this. Now we know this all from our heritage, but they say we are tested on 200 people, and they were tested for 1 month, and then we had taken the standard deviation and range of it, and we found out t square, t test we applied, chi square test we applied. At the end of they said, okay, now we found this is how the happiness is possible. So even if you want to verify it by the modern way, I'm saying enough research papers are available to say the same thing what we are talking. So they just applied the method of modern language. कंट्रोल पॉपुलेशन ले लो, उसको ये करो वो करो, अप्लाई करो, और उसके फिर टेस्ट निकालो, फिर उसके स्टैटिस्टिकल उसका जो भी वेरिएबल्स आते हैं उसको देखो, and you will get the same result what we are talking. Correlation coefficient is here 0.2 and here it is 2 and something like that. तो हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग वही कह रहे हैं, सिर्फ हम इससे कह रहे हैं कि हमारा ये आपका वाक्य प्रमाण है, कि हमारा शब्द प्रमाण है. We believe because our Granthas have told that if you want to verify, we can verify the modern way also. But the truth remains as it is, whether you verify it or not. सत्य किसी वेरिफिकेशन का मोहताज नहीं है. जैसा वो कथा में भृगु बाद में आया ही नहीं, जब आनंदमय कोश में गया तो उसको पिताजी के पास आता ही नहीं वो why he should ask whether it is right or not, he knows it is right. So really that's not required to be verified if we get the experience of it, but till that time let us experiment and get it through the modern ways also. I'm sure we will get it both the ways, ancient as well as modern. Thank you so much for giving this opportunity to me, and thank you. Thank you, sir, for your insightful lecture on bliss in a scientific way, in a psychological way. The Gajar Halwa example reminded me of my college days of diminishing marginal utility. The same way. Okay, if anyone has any questions, you can ask, sir.